हर दिन एक नई शुरुआत है, बस खुद पे भरोसा रखो। हेलो एवरीवन, आई एम राहुल गुजराल। वेलकम to your next chapter or next concept for the Boards Plus CUT series for accountancy. And again, we have chosen a short topic, but yet again a very important topic, that is your revaluation account. So today we will discuss about कि revaluation account सर होता क्या है, ठीक है, क्या डेबिट आता है, क्या क्रेडिट आता है, क्यों डेबिट आता है और क्यों क्रेडिट आता है, क्या जर्नल एंट्री होती है, और फिर हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे कि हाउ डू वी प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ your CUT UG exam as well as your board exam, right? So without any further delay, let us start with the introduction. So in a partnership, a revaluation account is a special account used to record changes in the value of assets and liabilities. So the main line is, it is used to show the changes in the value of assets and liabilities when the partnership is revaluing its assets and liabilities. This typically happens during events such as admission, the retirement, death, or change in existing profit sharing ratio. So we know the revaluation happens during reconstitution. So revaluation happens during, or you can say before, just before reconstitution. Sir, why just before? So you know that under reconstitution, you, by the way, अगर आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन में डाउट है तो इसी प्लेलिस्ट में एक और मैंने समझाया हुआ है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमारी चार चीजें आती हैं. कौन सी? चेंज इन profit sharing ratio among existing partners, right? Admission of a partner, then retirement of a partner, and then death of a partner. So these all are included in what? In your reconstitution. तो जब आप रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो अपनी पार्टनरशिप को, तो आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को ना वापस चेक करते हो उनकी वैल्यू, कि कहीं कोई एसेट्स हम लिखना तो नहीं भूल गए बुक्स में, कहीं कोई एसेट की वैल्यू ज्यादा थी पर हमने कम तो नहीं लिख दी. अभी एसेट पे डेप्रिसिएशन हो गया तो एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो हमें उसको सही वैल्यू पे लिखना होगा. तो जब आप ये एसेट और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करते हो, तो वो शो करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं. उस अकाउंट को हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट? सो आई होप द इंट्रोडक्शन इज क्लियर. ठीक है, तो हम कब बनाते हैं? रीवैल्यूएशन इज प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको पहले फॉर्मेट दिखाता हूँ. वेट, बिफोर दैट एक की पॉइंट्स बताता हूँ आपको. पर्पस क्या है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का? इट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द इंक्रीज or decrease in the value of assets or liabilities of the partnership. तो हमें जब assets और liabilities का decrease और increase show करना है in our books, so we will prepare a revaluation account. It ensures that the partnership's book reflect the current fair value of assets and liabilities. Second, treatment of asset revaluations. So increase in asset, या तो asset में increase होगा या asset decrease होगा. Same with liability, या तो liability increase होगी या liability decrease होगी. Now result of revaluation. The net effect of revaluation will be shown in the partner's capital accounts. If there is a gain, the capital accounts are credited, and if there is a loss, the capital accounts are debited. Now what is this? We know capital का credit balance होता है. तो अगर हमें partner की capital बढ़ानी है तो हम उसको credit करेंगे, journal entry में हम उसको credit करेंगे, right? अगर हमें partner की capital कम करनी है तो हम journal entry में partners की capital debit करेंगे. ऐसे ही अगर asset की value बढ़ती है, एसेट क्या है आपका? डेबिट बैलेंस होता है. एसेट बढ़ने पे डेबिट करते हैं, एसेट कम करने पे क्रेडिट करते हैं इन योर जर्नल एंट्री. ठीक है, नाउ दिस इज योर फॉर्मेट फॉर योर रिवैल्यूएशन अकाउंट. प्लीज टेक अ लुक वंस. ऑल राइट, so can you see revaluation account debit credit, right? So first let us see the credit side. So increase in the value of assets, decrease in the value of liabilities, unrecorded assets. तो पहले इन तीन पे ध्यान देना है. सेम उस साइड भी, फर्स्ट थ्री, decrease in the value of assets, increase in the value of liability and unrecorded liabilities. ठीक है सर, सर ये डेबिट क्यों आ रहा है, क्रेडिट क्यों आ रहा है? ठीक हो. नाउ दिस इज अन अकाउंट. जब हम अकाउंट से जर्नल पोस्टिंग करते हैं, पता है ना कैसे बनती है? सो देयर इज अ वे ऑफ साइकिल बोलता हूँ मैं इसको. देखो, जैसे मान लो आपको इसकी एंट्री पास करनी है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. जैसे मान लो एक स्टॉक था, स्टॉक नहीं था, चलो मान लो फर्नीचर था, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इधर मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय फर्नीचर, फॉर एग्जाम्पल 50,000.
ठीक है, मान लो 50,000 वैल्यू बढ़ गई, तो मैं क्या लिखूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, साइकिल बनाई टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब सुनो, मान लो यहाँ पे मेरी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई एक तरीके से, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, टू बिल्डिंग, जैसे मान लो 1 लाख कम हो गई, तो अब क्या बनेगी एंट्री, साइकिल चल रही है ना यहाँ से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। समझ आया? सेम वे अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। तो जनरल एंट्री में यहाँ पे तो हमने क्रेडिट कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पर जब लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस, पर लाइबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिट बैलेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेबिट में। सो लाइबिलिटी डेबिट, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पर मान लो यहाँ पे आपकी क्रेडिटर्स बढ़ रहे थे, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स। दिस इज हाउ यू ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू द जनरल एंट्रीज। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो जनरल एंट्रीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, नाउ दिस इज तो योर रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट। ठीक है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो हम एसेट बढ़ रहा है एक तरीके से, तो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल एक एसेट था, मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदी थी, वो मेरे लिए एसेट था, तो मैं रिकॉर्ड ही करना भूल गया अपनी बुक्स में। तो अनरिकॉर्डेड एसेट भी मतलब इंक्रीज ही हो रहा है ना एक तरीके से, तो वो भी हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। और जनरल एंट्री में एसेट बढ़ रहा है तो बुक्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब ठीक है, ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कुछ क्रेडिटर्स थे, मैं लिखना ही भूल गया उनको, भाई मैंने क्रेडिट पे लिया था सामान 5,000 का, पर मैं भूल गया, तो मैं लिखना भूल गया। तो अब मैं क्या एंट्री करूंगा, क्रेडिटर जब बढ़ते हैं तो क्या होंगे, क्रेडिट। ठीक है, जनरल एंट्री में वो क्रेडिट होंगे और यहाँ पे वो डेबिट होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या फिर टू क्रेडिटर्स। समझ गए? अब सर ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्या है? सपोज आपकी ये वाली साइड ज्यादा आ गई, आपकी ये वाली साइड आ गई 10 लाख। ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं आपका टोटल मिला के इन तीनों को प्लस करके 8 लाख। तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा, मतलब आपके जो एसेट में इंक्रीज आया एक तरीके से, या लायबिलिटी जो रिड्यूस हुई है, विच इज मोर देन इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट, तो मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है एक तरीके से। सो यू विल राइट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो जो भी 2 लाख का प्रॉफिट होगा वो हम बांट देंगे। सपोज ए और बी पार्टनर थे 1:1 में, तो हम 1:1 में बांट देंगे 1 लाख 1 लाख, तो दैट विल बी आवर प्रॉफिट। सपोज उल्टा हो जाता, यहाँ आपका लाइबिलिटी ज्यादा बढ़ी थी या एसेट ज्यादा कम हो गए थे, तो यहाँ पे 10 लाख आ रहा था और यहाँ पे 8 लाख आ रहा था, तो मतलब 2 लाख का लॉस है ऑन रिवैल्यूएशन। सो ये 2 लाख का लॉस भी हम कहां से कवर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल से, ए और बी, 1 लाख 1 लाख। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, साइकिल बनाओ टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। राइट, नाउ सेम अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट। समझ आ गया? सो गाइस दिस इज हाउ यू मेक एंड you adjust the revaluation account. Please take a look at it, giving you 1 minute. So you have to remember this, right? इसके बाद let us do one question. ठीक है, now one more question उससे पहले, सर आपने बोल दिया कि ए और बी पार्टनर से चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा था, तो ए इज टू बी तो उनका ओल्ड रेशियो था, उनका न्यू रेशियो है 3:2, तो हम 3:2 में बांटेंगे या 1:1 में? हमेशा चाहे किसी भी मोड का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, हम हमेशा ओल्ड रेशियो यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो इसकी जगह रिटायरमेंट हो रही होती, ए एंड बी पार्टनर्स होते, ठीक है, 1:1 एंड दे आर एडमिटिंग सी, एडमिशन हो रहा है, सी एडमिट हो रहा है नया पार्टनर, तो अब नया रेशियो है 3:2:1। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सी का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि सी के आने से पहले हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो हम ए और बी को ही बांटेंगे। अच्छा अब सुनो सर, अब रिटायरमेंट हो रहा है तो ए बी और सी है वो 3:2:1 में है, और सी रिटायर हो रहा है, अब सी जा रहा है, कह रहा है मेरा बहुत हो गया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं जाना चाहता हूँ, मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है, तो उसने स्पेस लिया और वो जा रहा है, कह रहा है अच्छा तुम जा रहे हो, पहले हिसाब करके जाएंगे, तो पहले रीवैल्यू करोगे और तुम भी उसमें पार्टिसिपेट करोगे, तो जाने से पहले तीनों ही, तो
सी के जाने से पहले ही रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बना। ये चीज समझ आएगी आपको। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड दिस इज हाउ यू ट्रांसफर लॉस एंड प्रॉफिट। सो नाउ लेट अस डू वन क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। आई होप मेरी राइटिंग आपको समझ आ रही है, ठीक है। सो अ बैलेंस शीट इज गिवन, ये आपकी लाइबिलिटीज है, ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड है आपकी बैलेंस शीट की, ये आपकी एसेट साइड है। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, ये आपकी बैलेंस शीट में आपकी वैल्यूज दी हुई हैं। इसके बाद बोला हुआ है A is to B is to C आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 3:2:1। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन कि गुडविल की वैल्यू 3 लाख है, लैंड को रिवैल्यू करा गया 1.6 लाख, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हो रही है 6% से, ठीक है, ये सब बोला गया है। और क्रेडिटर्स ऑफ 12K रिटर्न ऑफ। So the question says prepare a revaluation account and pass necessary journal entries. तो हम दोनों ही कर देते हैं क्वेश्चन में। So let us make a revaluation account. All right. All right. So this is your revaluation account. Revaluation account. Now this is your debit side. This is your credit side. हमें पता था जब एसेट बढ़ेगा तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जब एसेट कम होगा तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। एसेट रिकॉर्ड करना भूल गए तो अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना भूल गए तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो चलो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम जो जो समझ आ रहा है उस पे करते हैं हम फोकस। तो देखो क्या क्या लिखा है। गुडविल वैल्यूड एट 3 लाख, लैंड रिवैल्यूड एट 1.6 लाख, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन बाय 6% एंड क्रेडिटर्स ऑफ 12K रिटर्न ऑफ। ठीक है गाइस, तो मुझे पहले ये बताओ कि कौन से एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। यू विल से गुडविल सर शायद अनरिकॉर्डेड रह गई तो उसको लिखेंगे, नहीं, गुडविल को हम अलग से एडजस्ट करते हैं, राइट। जब भी हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है हम गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, सो दैट इज नॉट शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सो ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए था। सेकंड पॉइंट, लैंड रिवैल्यूड एट 1.6 लाख। तो लैंड की वैल्यू पहले कितनी थी बैलेंस शीट में, लैंड इज 1 लाख एंड नाउ इट इज रीवैल्यूड एट 1.6 लाख। तो मतलब एसेट की वैल्यू कम हुई है या बड़ी है, ये बताओ मुझे। एसेट की वैल्यू बड़ी है, कितने से बड़ी है, 1.6 लाख माइनस 1 लाख, 60,000 एसेट की वैल्यू बढ़ गई। तो वी नो बाय इंक्रीज इन एसेट, तो एसेट कौन सा है हमारा, बाय, हम लिखेंगे बाय लैंड, हाउ मच, 60,000। ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन बाय 6%। नाउ बिल्डिंग वाज 1 लाख, नाउ 1 लाख का 6% होता है हमारा 6,000। तो बिल्डिंग 6,000 से कम हो रही है, तो जब एसेट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, एसेट डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड लिखते हैं। तो बाय 2 बिल्डिंग, ठीक है, 2 बिल्डिंग, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 6,000 बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। हमारा ये पॉइंट पूरा हो गया। थर्ड, क्रेडिटर्स और 12K रिटर्न ऑफ। नाउ क्रेडिटर क्या होते हैं हमारे लिए, ये हमारे लिए लाइबिलिटी होते हैं, क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी होते हैं। लाइबिलिटी हमारे लिए कम हो रही है तो ये तो हमारी अच्छी बात है, और हम अच्छी चीजें किस साइड लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड, है ना। तो बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी, क्योंकि क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है और वो कम हो रही है, तो बाय क्रेडिटर्स, कितने के क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, 12,000 के। अच्छा मुझे बताओ, अगर 12,000 के डेटर्स रिटर्न ऑफ हो रहे होते मतलब आपका एसेट कम हो रहा है, तो यहाँ पे लिखते 2 डेटर्स, ठीक है। ये समझ आया, ठीक है सर, हो गया। नाउ विच साइड इज हैवियर, दिस साइड 72,000, this side is again 72,000 आना चाहिए, but here we have only 6,000, so it means 66,000 is the balance and which is the profit which will be distributed to the partners, ठीक है, to the partners. Who were the partners in the question, A and B and C, ठीक है। they decided to admit another partner D। तो क्या D आएगा यहाँ पे, D नहीं आएगा, क्योंकि उसके आने से पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। so to gain
on revaluation transferred to capital account of the partner A, B, C in old ratio. तो 66,000 को हम 3:2:1 में बांट देंगे, तो बहुत इजी है ये तो करना. 33,000, 22,000 and 11,000. ठीक है. So guys, this is how you prepare a revaluation account. I really hope the basics are clear to you. Now they are asking again कि चलो ठीक है आपने बना लिया, मुझे जर्नल एंट्री बनाओ for each transaction. So मुझे बताओ for increase in the value of land. लैंड की वैल्यू बढ़ी है 60,000 से, तो उसकी क्या होगी? लैंड की वैल्यू बढ़ रही है तो जनरल एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट साइकिल, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स राइट ऑफ हो रहे हैं तो लाइबिलिटी कम हो रही है, मतलब डेबिट हो जाएगी. सो क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इजी. नेक्स्ट, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, एसेट कम होने पे जनरल में डिक्रीज हो रहा है तो मतलब क्रेडिट होगा. यहां से शुरू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग. हमेशा आपको कैसे याद रखना है, यहां से ऐसे चलेंगे, हम ऐसे घूम रहे हैं. ठीक है, तो हम यहां से शुरू करते हैं. क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लैंड डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बिल्डिंग. अगर अब हम बोलेंगे राइट द जनरल एंट्री फॉर गेन ऑन रिवैल्यूएशन, तो क्या होगा? रिवैल्यूएशन डेबिट टू एस कैपिटल, देखो टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल. Yes or no? So this is how you pass the journal entries for revaluation. So I hope everything is clear. One more thing, they can ask you in theory, revaluation account का nature क्या होता है? So it is a nominal account. 1 mark question they can ask you. So revaluation account is a nominal account. ये भी आप याद कर लेना. ठीक है guys. So I hope revaluation account is now clear to you. If you want any other topic which you want me to teach you, I will do that. You can write in the comments. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो. ठीक है. If you want to buy courses for your CUT exams, you can visit our Drishti website where I will be teaching you the commerce subjects. Okay guys, तो तुम लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सेल्फ बिलीव कॉन्फिडेंस दोनों करते रहो. मैं हूं राहुल गुजराल, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ो एंड बाय बाय एंड टेक केयर.